अगेन आपका वेलकम है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल गविष्ट काज में। माई सेल्फ गजेंद्र सिंह। सो एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टॉपिक इज सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. So in previous videos we discussed about some more topics, that is quadratic equation, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, और सोल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो ये सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए थे. तो आज हम बात करने जा रहे हैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ठीक है, सो वी हैव a standard quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0, and here by the quadratic formula ठीक है, quadratic formula we discussed in previous videos. So quadratic formula is if quadratic equation in variable of x, then the solutions are x equal minus b plus minus equal d upon 2a. This is the quadratic formula to find solution of any quadratic equation. So here we split these solution minus b plus square root of d upon 2a, and another is minus b minus square root of d upon 2a. If we want to get what sum of roots. So these are the roots. There are two roots, minus b plus square root of d upon 2a, where d is what? Discriminant. D is discriminant. The value of d is b square minus 4a. We discussed in previous videos. So sum of roots, that is first one is and other one is this. So sum minus b plus square root of d upon 2a and plus this term minus b minus square root of d upon 2a, and here we calculate 2a is LCM, minus b plus square root of d and plus minus b minus square root of d. So here we can further calculate it, minus b plus square root of d and minus b and minus square root of minus b plus root d upon 2a. सम ऑफ रूट्स करना है तो माइनस b प्लस रूट d, और ये माइनस b एंड माइनस रूट d upon 2a, and here root d and root d is cancelled out, and these terms will be add minus 2b and upon 2a, 2 1 2, that is minus b upon a. So b is coefficient of what? Coefficient of x. So we can write that minus coefficient of x upon a is coefficient of x square. Coefficient of x square.
So sum of roots is this. Sum of roots is this thing. So similarly, sum of zeros this much, and here sum of roots this much. Same, दोनों चीज क्या होती है, बराबर होती है. सम ऑफ जीरोस करेंगे तो भी हमारी माइनस बी अपॉन होता है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. इफ वी गेट सम ऑफ रूट्स, सो दिस वैल्यू, द वैल्यू इज द सेम, एंड वी हैव टू फाइंड another product of roots. So we calculated, we can calculate here. इसको कर देते हैं. We product of roots. Product of roots. We have a product. We have a roots this and this much. So product of root minus b plus square root of d upon 2a multiply minus b minus root square root of d upon 2a. So simply we can multiply minus b here, we can split this minus b upon 2a and plus square root of d upon 2a, and here minus b upon 2a and minus square root of d upon 2a. So this is the a plus b and a minus b by the identity. So identity is a plus b and a minus b. We know a square minus b square. So this thing is applied here. So minus b upon 2a and plus square root of d upon 2a minus b upon 2a minus root d upon 2a, that is a square, this one minus b upon 2a square रिजल्ट क्या है, ये है सम ऑफ रूट्स. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है यहाँ पे. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a स्क्वायर. सो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस d upon 4a square b square minus d upon 4a square, and d is the value of d is b square minus 4ac. So we put this value in here. So we can see that b square minus d is value b square minus 4ac upon 4a square. इसके बाद हम इधर ले लेते हैं तरफ. So b square minus b square plus 4ac upon 4a square. b square cancel out, 4 से 4 कैंसिल आउट, एंड a से 1 ही कैंसिल, c अपॉन a. सो प्रोडक्ट ऑफ here, this is the c is constant term upon a is coefficient of x square. So this is the
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, product of roots, or we can say solution. So this is the result. So same in polynomial. जैसे polynomial क्या होता था, sum of zeros this much minus b upon a, and product of zeros this much. Same roots, यहाँ पे roots आ गए, वहाँ पे zeros रहते थे. तो ये इस पे इस तरह से इसका हम कर सकते हैं. तो इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं इसको समझने के लिए अच्छे से. तो करते हैं, इसको इरेज करते हैं. रिजल्ट हमको बताइए. सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे. एक क्वेश्चन हमारे पास. वी हैव अ इक्वेशन, या चेक we have a equation is x square minus 18x plus 77 equal to 0. तो यहाँ आपको सम ऑफ रूट्स फाइंड करना और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. आप कहते हो रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्यूशन एंड कोफिशिएंट. ठीक है, तो बना सकते हो. वेरीफाई दैट एंड फाइंड द सॉल्यूशन, और we can say roots, and verify the relationship between roots and coefficient. So same question is पॉलिनोमियल. इसमें पॉलिनोमियल में हमसे क्या बोलता था, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट. अब यहाँ पे रूट्स एंड कोफिशिएंट तो कर लेते हैं इसको. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट सॉल्यूशन. सो बाय द किसी भी उससे आप कर सकते हो, बाय द फैक्टराइजेशन मेथड या फिर बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सो बाय द फैक्टराइजेशन से करते हैं. बाय द फैक्टराइजेशन इसके तो 77 के फैक्टर करेंगे. 11 7 77 और 7 7. सो 11 और 7 को ऐड करके हमें क्या मिलेगा 18. तो इसको कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 इक्वल टू 0. इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आप पॉलिनोमियल में इसको कहते थे, यहाँ पे इसको फैक्टराइजेशन मेथड आपको इसको जानते हैं. तो एक्स स्क्वायर माइनस 18 को माइनस 11x एंड माइनस 7x प्लस 77 इक्वल टू 0. इधर से कॉमन देखते हैं. x इज कॉमन, रिमेनिंग पार्ट इज x माइनस 11 माइनस 7 इज कॉमन, सो x माइनस 11 इक्वल टू 0.
0, x minus 7 and x minus 11 equal to 0. So these are the linear expression, product of linear expression which we will get this much. तो जब लीनियर ये एक्सप्रेशन है, इनको आप इक्वल डिजिट करोगे इंडिविजुअली तो आपको क्या मिलेंगे, क्या मिलेगा आपको, सॉल्यूशन मिलेंगे, x की वैल्यूज मिलेंगी, x equal 7 and x equal to 11. So these are the roots of the given quadratic equation. These values of x are the roots of given quadratic equation. क्या है ये जो वैल्यूज है, ये इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या रूट्स है. तो फाइंड द रूट्स, आपने रूट्स फाइंड कर लिए. अब कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट. सो वी नो दैट सम ऑफ रूट्स is sum of roots what minus coefficient of x upon coefficient of short में coefficient of x square. तो करते हैं if LHS and RHS equal तो then the our verify the relationship between zeros and coefficient, relationship between roots and coefficient. यहाँ पे रूट्स होते हैं तो करते हैं. सम ऑफ रूट्स, आपके रूट्स आए 7 प्लस 11 कितना हो गया ये 18. इधर चेक कर लेते हैं. तो इस 18 क्या लिख सकते हैं हम, इस तरह से लिख सकते हैं माइनस 18 अपॉन 1. अब ये माइनस 18 क्या है चेक करो यहाँ पे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x है और नीचे 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. So this is the true, hence verified. अब लिखते हैं hence verified. तो इस तरह से सम ऑफ रूट्स हो गया. अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हमने अभी पढ़ा था. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आपको रूट्स गिवन है 7 into 11. वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो टेक LHS. अब लिख सकते हैं सर टेक LHS को लेके आपको RHS दिखा दें. जैसे यहाँ से टेक LHS, सो वी सी LHS इक्वल टू RHS ऐसे यहाँ पर करते हैं. सो टेक LHS तो LHS में प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपके 7 और 11 है. 7 into 11 कर सकते हो, कितना हो गया 77. अब इस 77 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं नीचे 1 मान सकते हैं. 77 क्या है अकॉर्डिंग टू दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कांस्टेंट टर्म अपॉन 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. सो हेंस वेरीफाइड. तो जैसे आपने पॉलिनोमियल में करा था सम ऑफ जीरोस, रिलेशनशिप बिटवीन, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट. सो सेम यहाँ पे आपको रूट्स एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप आपको एस्टेब्लिश करना. तो करने का तरीका ये रहेगा. तो आपको इसमें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करते हैं वो इस तरह से है. तो देखो इसमें अब हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मेन टॉपिक थे वो सारे हो चुके हैं. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, उसकी मोस्ट जनरल फॉर्म क्या होती है, वो सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया. उसके बाद रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, एक्स की वो वैल्यूज या उस वेरिएबल की वो वैल्यूज जिस पे वो क्या करता है इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, दैट इज LHS इक्वल RHS ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फिर उसका बाद हमने बात करी थी सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड. तो हमने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हमने कर लिया था. सॉल्व फैक्टराइजेशन मेथड दैट इज
मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, बाय द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से उसको सॉल्व करना, उसके रूट्स फाइंड आउट करना। फिर उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात करी हमने। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, वो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या रूट्स बताता है, नेचर बताता है कि उसकी नेचर क्या रहेंगे, उसके रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, इमेजिनरी होंगे, रियल होंगे, तो ऑल अबाउट दैट इसके बारे में बताता है। उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात कर लिया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है और कैसे उसको अप्लाई करते हैं। जहाँ पे हमारा फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई नहीं होता वहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से फिर हमने नेचर ऑफ रूट्स बात करें। तो ओवरऑल आपका जो चैप्टर है यहाँ पे फिनिश हो जाता है। और कुछ अभी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, कुछ एक दो टॉपिक, एक टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है, तो उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और इसको जो भी आपकी क्वेरीज हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।